Hi, good morning. So last question we are left with from the exercise 10.2, that is question number 13. So in the question 13 it is given that a quadrilateral is circumscribing a circle and you need to prove that the opposite sides of the quadrilateral they will make supplementary angles at the center. That means it is given that ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle. So this is ABCD. ABCD. So in the question it is given that ABCD is a quadrilateral and it is circumscribing a circle. You need to show that the opposite side, that is AB and CD are the opposite sides, no problem. And if you take BC, then BC and AD are the opposite sides. So you need to show that the opposite sides, they make supplementary angles at the center. That means suppose this is the center of the circle. So you need to show that these opposite sides, AB and CD, if you take AB and CD as opposite side, then you need to show to prove angle AOB and COD are supplementary. That means sum is 180. Supplementary angles means the sum of the two angles is 180 and complementary means the sum of the two angles is 90 degree. Good. So in the question it is given that ABCD is a quadrilateral, it is circumscribing a circle and you need to show that the opposite sides they make supplementary angles at the center. That is AOB plus COD 180 दिखाना या तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC 180 दिखाना है. AD ऑपोजिट साइड और BC लूंगा तो AOD और BOC को 180 दिखाना सब. हाँ, तो एक को दिखा दूंगा फिर दूसरा हो जाएगा अपने आप. Why? Because we know the sum of all the angles around a point. Suppose this is a point, इसका सारा एंगल जो सम होगा ना, सारा एंगल का सम होगा ना, that is 360. we know the sum of all the angles around a point is 360 we know. तो अगर इसको 180 दिखा दूंगा तो दूसरा therefore it is 360 minus 180 is 180. That means question दे रखा कि ABCD is a quadrilateral, it is circumscribing a circle and you need to show that the opposite sides they make supplementary angles at the center. तो AOB plus COD 180 प्रूफ कर देते हैं या AOD plus BOC 180 प्रूफ कर देते, कोई से एक प्रूफ कर देंगे. नेक्स्ट टाइम therefore बाकी को 180 लिख देंगे. कैसे बता देखना. तो सी आपका ऐसा क्वेश्चन बहुत कर दिया था. तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो A is an external point, B is an external point, C an external point, D is an external point to the circle, and these are tangents. This much is the tangent, this much is the tangent, this much is the tangent, this much is the tangent. This from point B, this much is the tangent, this much is the tangent. From point C, this much is the tangent, this much is the tangent, and that tangents are equal. And even I told that the angle of inclination with the line of joining are also equal. आपको मैं थ्योरम बताया था कि दिस इज द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, हमने दो टेंजेंट बना दिया और दोनों टेंजेंट बराबर था और ये सेंटर था, ये लाइन ऑफ जॉइनिंग था, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये दोनों बराबर था ना. तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द लाइन ऑफ जॉइनिंग आर आल्सो इक्वल. तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द लाइन ऑफ जॉइनिंग, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट, तो दिस विल बी आल्सो इक्वल. गुड. तो ये दोनों भी बराबर होगा, ये दोनों भी बराबर होगा, ये दोनों भी बराबर होगा. तो इसको लिखेंगे कैसे? प्रूफ एंगल, इसका नाम दूंगा DAO. DAO इक्वल टू BAO. समझ गया ना? DAO दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. क्यों? इसमें लिखेंगे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ द लाइन ऑफ जॉइनिंग, with the line of joining. बस sufficient. अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे कि ADO दिस एंगल इक्वल टू CDO, सेम कॉज. गॉट इट. अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? BCO इक्वल टू DCO,
सेम कॉज, वाई बिकॉज सी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, टू टेंजेंट बना देंगे तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, पहला थ्योरम प्रूफ किए थे हमने। नेक्स्ट बी में क्या लिखूंगा कि सी बी ओ इक्वल टू ए बी ओ, कॉज इज सेम, तो इतना बराबर आ गया हमने। तो विल सपोज दिस एंगल एज स्मॉल ए, तो ये भी स्मॉल ए होगा। विल सपोज दिस एज स्मॉल बी, ये भी स्मॉल बी होगा। ये स्मॉल सी मान लेंगे तो ये भी स्मॉल सी होगा। ये स्मॉल डी मान लेंगे तो ये भी स्मॉल डी होगा, नो प्रॉब्लम। तो इसको क्या कर दो, इसके बाद इक्वल टू स्मॉल ए कर दो, उसी में इसमें इक्वल टू स्मॉल बी कर दो, इसमें इक्वल टू स्मॉल सी कर दो, दोनों एंगल इसमें इक्वल टू स्मॉल डी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये दोनों को ए मान लिया, दूसरा स्टेप नहीं लिखेंगे, उसी में कर दिया कि इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, ये इक्वल टू स्मॉल ए है, ये इक्वल टू स्मॉल बी है दोनों एंगल, ये इक्वल टू स्मॉल सी है दोनों एंगल, ये इक्वल टू स्मॉल डी है दोनों एंगल, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ सी इन दिस ट्राइंगल ए ओ बी, कौन सा ट्राइंगल ले लिया हमने, ए ओ बी। एक एंगल है ए, एक एंगल है डी, तो ये कितना होगा 180 माइनस ए प्लस डी। भाई साहब ये ट्राइंगल में एक ए था एक डी था, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस ए प्लस डी। देयरफॉर इन ट्राइंगल, इतना लिख लो, उसके बाद लिखेंगे, डन ना। इसके बाद लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस डी, एंड इन ट्राइंगल COD, एंगल COD इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस सी। कहां से आया b प्लस सी, अरे ये एक b था, ये एक c था, तो ये 180 180 माइनस b प्लस सी हो जाएंगे। गॉट इट। तो हम लोग को ये दोनों को 180 दिखाना है, तो दोनों को 180 कैसे दिखाएंगे, नाउ ऐड कर दो एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो 180 माइनस ए प्लस डी प्लस 180 माइनस सी प्लस डी। 180 180 मिलकर 360 माइनस ये सारा ब्रैकेट में हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस कॉमन लेंगे तो ए प्लस डी अंदर कर देंगे और बी सी प्लस डी कर देंगे। सॉरी ये ए प्लस क्या है जी, ये सी प्लस बी है, बी प्लस सी है ना, सॉरी ये बी प्लस सी कर दो, बी प्लस सी। तो इतना आ गया 360 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है हमको पता है, सी। ये पूरा एंगल कितना है 2a, ये पूरा एंगल कितना है 2b, ये पूरा एंगल कितना है 2c, ये पूरा एंगल कितना है 2b, ये 2a, ये 2d, ये 2c, ये 2b। सो 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d इक्वल टू 360। कैसे पता आपको, the sum of all the angles of a quadrilateral is 360. This is 2a, this is 2d, this is 2c, this is 2b. तो if you take 2 common here, तो यहाँ पे a plus b plus c plus d common आ जाएंगे और यहाँ पे 360 रुपएगा। तो implies a plus b plus c plus d will be equal to 60 by 2 equal to 180। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और उस तरफ जाकर डिवाइड होगा, that is 180। तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के जगह पे हमने क्या पुट करूंगा 360 माइनस इसमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के 180 दिखा रखा हूं ना, तो इसमें 180 पुट कर दूंगा, तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव्ड। सम ऑफ AOB प्लस COD इज 180 आ गया। गॉट इट ना। हाँ, देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में लिख देना AOD प्लस BOC इज आल्सो 180। व्हाई, बिकॉज़ द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड द पॉइंट, एक पॉइंट के सराउंडिंग में सारा एंगल ले लोगे आप तो 360 होता है, तो ये 180 दिखा दिया तो बाकी दोनों का भी 180 हो जाएंगे। गॉट इट ना। अच्छा ये कैसे आ गया, ये गॉट इट ना, ये दोनों को ऐड कर दिया तो 180 180 मिलकर 360 और ये दोनों ऐड होके, ये भी माइनस था ये भी माइनस था, तो माइनस बाहर कॉमन ले लिए, इसका a प्लस डी, इसका a प्लस डी आ गया, इसका b प्लस सी, लेकिन इकट्ठा लिख लिया, हमें देखने में अच्छा लगेगा, a प्लस बी प्लस सी डी लिख दिया। तो a प्लस बी प्लस सी का, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू 180 कहाँ से आया, दैट इज हाउ वी गॉट इट। सो
exercise is finished, but one more theorem I want to teach you. Why? Because this theorem is not in your NCERT book, but you may get questions based on that theorem. Got it na? So that theorem, write down. This much is done na? Acha. So that theorem's name is alternate segment theorem. तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये कहता है कि द एंगल मेड बाय द टेंजेंट, द एंगल मेड बाय द टेंजेंट, the angle made by the tangent with a chord at the point of contact, so this is the angle made by the tangent with a chord at the point of contact, is equal to the angle subtended by that chord in the alternate segment of the circle. ये दोनों बराबर होता है. फिर से देख लो, स्टेटमेंट लिख लो. द एंगल made by a tangent with the chord at the point of contact is equal to the angle subtended by that chord at the alternate segment. This is the alternate segment, this is the main segment था, this is the corresponding segment and this is the alternate segment, उल्टा वाला. हाँ, made at the alternate segment of the circle. थ्योरम ये है. थ्योरम ये कहता है कि एक टेंजेंट और एक कॉर्ड के बीच में जो एंगल है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल. दैट मीन्स ये दोनों एंगल बराबर है. तो प्रूफ कर देते हैं. दिस इज द स्टेटमेंट. राइट डाउन. कोई भी थ्योरम हमारे को प्रूफ करना है तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन. अगर इफ समथिंग मोर कंस्ट्रक्शन आपको खुद से बनाओगे फ्रॉम योर ओन साइड, इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग सम मोर लाइंस और पॉइंट समथिंग लाइक दैट टू ए डायग्राम, तो दैट यू हैव टू मेंशन इन द कंस्ट्रक्शन सेक्शन. गॉट इट. तो इतना ये स्टेटमेंट है. तो आपको प्रूफ करना है हमारे को ये. गॉट इट ना. सी स्टेटमेंट. So this is a statement to prove xy is a tangent, this is A, this is B. To prove angle AYX equal to angle ABY. This is the center of the circle. तो कंस्ट्रक्शन करूंगा कि we join AO and OY. ये दोनों को ज्वाइन कर लिया. सेंटर था ना ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो we know OYX, this is 90 degree. Why? Because the radius is perpendicular to the tangent or the point of contact. So प्रूफ लिखेंगे आप. प्रूफ लिखेंगे कि लेट एंगल AYX इक्वल टू P. P मान लेंगे इसको. K मान लो ना, K देखने में अच्छा है. K मान ले इसको. ठीक है जी. एंड एंगल OYX इक्वल टू 90 डिग्री. प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट लिख दूंगा. प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट. तो अगर ये 90 है पूरा, ये K है, तो दिस मच इज
90 माइनस के, डियर फोर एंगल ओ वाई ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स, ओ वाई ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स। तो दीज आर द टू रेडियस, दीज आर द टू रेडियस ना, अच्छा दीज आर द टू रेडियस था ना ये दोनों, तो ये जितना एंगल होगा ये भी उतना एंगल होगा। व्हाई? बिकॉज हमको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। हाँ, तो ये कितना आ गया हमारा 90 माइनस एक्स ओ वाई ए, देयरफॉर ओ ए वाई इज ऑल्सो नाइनटी माइनस एक्स। इधर क्या लिख दूंगा, लिख दे आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों है जी, ये 90 माइनस के आ गया, सॉरी ये के था रे, हाँ 90 माइनस के, ये 90 माइनस के था तो ये भी 90 माइनस के आ गया। गुड, इतना लिख लो फिर बताता हूं। तो ये भी 90 माइनस के आ गया, ये भी 90 माइनस के आ गया, नो प्रॉब्लम। तो नाउ विल कंसीडर ट्रायंगल ओ ए वाई, इतना लिख लो, इसके बाद बताता हूं। तो 90 माइनस के 90 माइनस के आ गया दोनों, गॉट इट ना। अच्छा नेक्स्ट सी, दोनों 90 माइनस के 90 माइनस के आ गया। कौन सा ट्रायंगल, ये एंगल। सो नाउ इन ट्रायंगल ओ ए वाई, तो ओ ए वाई ट्रायंगल में ये कितना हो जाएंगे जी, ये रहता है हमारा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बाकी ये दोनों का सम। तो एंगल इसका नाम है ओ ए ओ वाई, 180 डिग्री माइनस बाकी ये दोनों का सम। ये दोनों का सम कितना था, एक था 90 माइनस के और दूसरा भी था इसके, यही तो था, दोनों 90 माइनस के 90 माइनस के ही तो था। दिस वाज आल्सो 90 माइनस के, दिस इज आल्सो 90 माइनस के, ये भी 90 माइनस के था, ये भी 90 माइनस के था। तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस सम ऑफ दिस टू, 180 माइनस सम ऑफ दिस टू। तो ये हो जाएंगे 180 माइनस 90 प्लस 90 इज 180 माइनस 2 के, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएंगे 180 माइनस 180 कर दूंगा और ये प्लस 2 के हो जाएंगे, 180 कैंसिल, 2 के आ गया जी। ये एंगल कितना आ गया 2 के, ये एंगल कितना आ गया 2 के, ये कितना आ गया 2 के। तो अगर ये सेंटर पे 2a बनाएगा तो सरकमफेरेंस में कितना बनाएगा, आई थिंक दिस थ्योरम यू हैव गॉट इन क्लास 9। द एंगल सबटेंडेड बाय द chord at the center is double the angle made by the same chord at the periphery, at the boundary, at the circumference. So if this is 2k, this is half of 2k. तो therefore इसके बाद लिखूंगा नेक्स्ट 2k कहां से आ गया कि ये ट्रायंगल में 180 माइनस ये दोनों का सम कर दिया, तो 2k आ गया हमारा ये एंगल, वो एंगल 2k आ गया। तो इफ एंगल O is 2k, therefore एंगल ABY इक्वल टू हाफ ऑफ 2k, 2 कैंसिल, इक्वल टू k। ये हाफ ऑफ 2k क्यों, वाई? बिकॉज यू हैव गॉट इन द थ्योरम ऑफ क्लास 9 दैट एंगल मेड बाय द chord at the center is double the angle made by that same chord at the periphery, तो इसलिए उसका हाफ बना दिया। तो ABY कितना आ गया, k आ गया, ABY भी k आ गया। हमने माना क्या था, AYX कितना मान लिया था, k मान लिया था, ABY भी k आ गया, therefore दिस k मान लिया था, ये भी k आ गया एट लास्ट। तो therefore these two angles are same, proved, hence proved, इक्वल टू क्या मान लिया था AYX, proved। तो ये थ्योरम ये कहता है कि एक सर्कल में टेंजेंट बनाओगे कोई सा कोड के साथ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो एंगल बनाएगा that angle will be equal to the angle made by that same chord at the alternate segment of the circle. Okay, bye, practice this, bye.